আলোর উৎসব দীপাবলি দোরগোড়ায়। ফি বছর দীপাবলি উপলক্ষে দেদার বাজি পোড়ানো হয়। এই বাজির ফুলকি থেকে ঘটে অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা। দীপাবলি উপলক্ষে কলকাতা আইএসএস ফাউন্ডেশন ও রবীন্দ্র সরণি ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে বড়বাজারের আর্মেনিয়াম স্ট্রিটে আগুন নিয়ে এক সচেতনতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দিন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ফায়ার ব্রিগেডের পুরো দল আগুন দুর্ঘটনা এড়াতে কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং সচেতন থাকতে হবে তা শেখাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার হাত থেকে এলাকার মানুষকে কিভাবে বাঁচানো যায় তা বোঝানো হয়। এই দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকো বিধায়ক বিবেক গুপ্তা, বড়পাচের চেয়ারপারসন রেহনা খাতুন, পৌরপিতা মহেশ শর্মা, রবীন্দ্র সরণি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতা আইএসএস ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি অশোক ওঝা, মিরাজ খান, মোহাম্মদ হাসিম, মোহাম্মদ জামাল সাহেব, মিডিয়া ইনচার্জ পারভেজ আলম সহ অন্যান্যরা। আইএসএস फाउंडेशनर এই হেন উদ্যোগে খুশি সকলেই। तीन चीजों में हमारी फायर कम होती है। एक तो समझिए कि ये कंबस्टेबल मटेरियल ये तो जो दूसरी होती है जहाँ पे दूसरी हमें প্রথমেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনী অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের পক্ষ থেকে এখানে যারা অর্গানাইজার কলকাতা এসএস ফাউন্ডেশন আর রবীন্দ্র সরণি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তৎসহ এত অঞ্চলে যারা সুনাগরিক আছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। কারণ সামনে দেওয়ালি আছে, কালী পুজো, দেওয়ালি, ছট পুজো, আলো বাজি এগুলো থাকবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটা বড়বাজার এরিয়া, এই অঞ্চলে কোনো অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা যদি ঘটে আমাদের দপ্তর সবসময় আমরা এদের পাশে আছি এবং থাকবো, এবং আমরা এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে আমাদের দপ্তর এবং এখানকার যারা অর্গানাইজার আছে তারা আমাদের সঙ্গে সব সময় যত হেল্প করেন এনারা। আমরা আজকে যেটা এখানে এসেছি মূলত যে ফায়ার প্রিভেনশন এবং প্রোটেকশন, কিভাবে আগুন লাগলে কিভাবে ফায়ারটাকে প্রিভেন্ট করা যায় এবং ফায়ারটাকে কিভাবে প্রোটেকশন করা যায়, সেইগুলো আমরা আজকের এখানে দেখাবো। এবং সর্বোপরি আমরা প্রত্যেকেই বাড়িতে গ্যাস দিয়ে রান্না করে, বর্তমান সমাজে গ্যাসে আগুন লাগলে বিশেষত গ্যাসে রান্না করে মহিলারা, এবং গ্যাসে আগুন লাগলে কি কি করণীয় এবং কি কি করবে সেটা আমরা এখানে লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে আমাদের ছেলেরা। আশা করি আপনারাও দেখবেন, এটা আপনাদের নলেজে আসবে। হাউ টু ফায়ার প্রিভেন্ট, কীভাবে আমরা ফায়ারটাকে প্রিভেন্ট করি। প্রোটেকশনটা তো পরে, আগে প্রিভেন্ট করতে হবে। কারণ এই সমস্ত অঞ্চল এখানে ব্যবসায়িক জায়গা, এখানে প্রচুর গোডাউন, প্রচুর ব্যবসা হয়। যদি আগুন লাগে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে এনারা যদি আগুনটাকে প্রাথমিক অবস্থায় যদি নিভিয়ে যেতে পারে, আগুনটা ডিভাস্টেটিং হবে না, তার মধ্যেই ফায়ার ব্রিগেড চলে আসে। কারণ আমাদেরকে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনারা পশ্চিমবাংলার সুনাগরিক এবং আপনারা হচ্ছে সমাজের মিডিয়া, আপনাদের মারফতই সমাজ হচ্ছে সব কিছু জানতে পারে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কলকাতা শহরের যে রাস্তাঘাট যেভাবে জ্যামজট আছে সেটাকে কভার করে আমাদের আসতে হয়। আপনারা এটুকু জানবেন যে ফায়ার ব্রিগেড কখনো কল করার পরে ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু আমাদের নিয়মেই আছে 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের স্টেশন লেফট করতে হয়। আমরা যা পড়ি জ্যামে আটকে গিয়ে আমাদের যতটুকু আসতে সময় লাগে, ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু অযথা দেরি করে না। কিন্তু আগুন কখনো থেমে থাকে না। আগুন যদি লাগে, আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড আসার আগে যে করণীয়, যে প্রাথমিক কাজ, সেটা যদি আমাদের যারা নাগরিক সমাজ আছেন তারা যদি সেইটুকু কাজ করে দিতে পারেন, তাহলে আগুনটা মানুষের সম্পত্তি, মানুষের জীবনহানি থেকে, সমস্ত কিছু থেকে রক্ষা। देखिए, दिवाली दीपों का पर्व है। दीपावली का जो संधि विच्छेद है दीपवाली, तो दियों का रोशनाई का पर्व है। और रोशनाई के पर्व में अक्सर देखा गया है कि काली पूजा, दीपावली के समय में दुर्घटना की शिकायतें बढ़ जाती है। तो उसमें एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सदन ट्रेडर एसोसिएशन, जनरली देखा गया है कि व्यापारी लोग को बोला जाता है कि व्यापारी लोग केवल व्यापार करते हैं और रुपया कमा के चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यापारिक संगठन जो लोगों को अवेयरनेस कर रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, हम लोग तहे दिल से
रविंद्र सदन ट्रेडर एसोसिएशन और एहसास फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोगों के बीच में जागरूक ला रहे हैं, क्योंकि जागरूकता से ही कोई चीज़ को काटा जा सकता है। कोई भी चीज़ एक दिन में शुरू नहीं होती और एक दिन में बंद नहीं होती। आस्ते आस्ते जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे लोगों में जो ये खामियां ये दूर होगी। तो और फायर ब्रिगेड जिस तरीके से लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, इससे हमारे इलाके के नौजवान सक्षम होंगे, वो समझ सकेंगे कि आग में कैसे काम किया जाता है, और भगवान ना करे यदि कभी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें वो लोग बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। हम बचपन से बड़ा बाजार में जन्म हुआ और इसी बड़ा बाजार में बड़ा हुआ। अब माननीय ममता बनर्जी के शासनकाल में फायर ब्रिगेड जिस तरह काम कर रहा है वो आप सबको मालूम है, और ये जागरूकता अभियान जो फायर ब्रिगेड ने चालू किया है माननीय ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में, ये एक तरह का समाज को प्रेरणा देने का काम है। और हमारी चेयरमैन पर्सन ने कहा था कि आग जब लगती है तो जो आदमी फंसा हुआ होता है वो उसमें से निकलने के लिए साहस करता है, लेकिन उसी तरह फायर ब्रिगेड भी चाहता है जो आग में फंसे हुए लोगों को किस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर उनको बचाते हैं। ये मान्य पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में फायर ब्रिगेड का जो काम है वो हमारे बंगाल में ही है। पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन बाद दिवाली है। कोलकाता एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी ट्रेडर एसोसिएशन के जानिब से मैं हम वतनों भाई बहन को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। 2 दिन बाद दिवाली, काली पूजा, और पश्चिम बंगाल का एक ऐसा प्रोग्राम है ये काली पूजा और दिवाली के बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हमारे घर में बच्चियाँ पटाखा का इस्तेमाल करती हैं। मैं यही कहूँगा कि दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए, सेफ रहिए। और सरकार जो आपको पाबंदियां लगाती है कि इस तरह के पटाखा फोड़ने से नुकसान हमारे आबो हवा पे पड़ती है, हमारे घर को नुकसान होता है, हमारे इलाका को नुकसान होता है, इस तरह के पटाखा से आप परहेज करें। जो हमारी सरकार आपको बताती है कि इस तरह के पटाखा को आप इस्तेमाल करिए, आप सबसे गुजारिश है कि उसी तरह के पटाखा को इस्तेमाल करके अपनी खुशियों को मनाइए। हम अगर सहयोग करेंगे, हमारे इलाका के लोग सहयोग करेंगे तो हम अपने दिवाली और काली पूजा को बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। इसी मौका को देखते हुए कोलकाता एहसास फाउंडेशन और रविंद्र सरानी एसोसिएशन के तमाम मेंबरात ने मिलकर ये फैसला लिया कि दिवाली से पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम करें कि लोगों को हम जागरूक कर सकें। तो हम लोगों ने फायर स्टेशन से जाके हमारे इलाका के हमारे कुंदर साहब हमारे ओसी हैं फायर स्टेशन के, उनसे हम लोगों ने ये मशवरा किया। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप लोग प्रोग्राम करिए, हम आएंगे, लोगों के सामने ये डेमोनेशन देंगे, बताएंगे कि आप लोग कैसे सेफ रहिएगा। अगर किसी कारण से या किसी वजह से अगर आपके इलाका में, आपके बिल्डिंगों में कहीं भी अगर आग की थोड़ी सी भी इस तरह के मामलात होता है कि आग लग जाती है, तो आप कैसे बच सकते हैं। और अगर आपके इससे बाहर है तो आप हमारे स्टेशन में आप फ़ोन करके हमें इतला करके बुला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं रविंद्र सरानी ट्रेड एसोसिएशन को और एहसास फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ कि जब भी कोई त्यौहार इस तरह का आता है, जैसे दीपावली है, छठ पूजा है, तो इस तरह से लोगों को बेदार करने के लिए लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इसको लेकर के एक फिक्रमंदी के साथ ये इदारा जो है एक प्रोग्राम करती है, जहाँ पर हमारे दमकल दफ्तर के तमाम ऑफिसर हमारे यहाँ सेंट्रल रेवेन्यू से आए हुए हैं, तमाम कुछ शहरी भाई हमारे यहाँ हैं जो अपना मैसेज घर घर तक पहुँचाएंगे कि जो खुशी है ये ज़िंदगी से बढ़ कर के नहीं है। ऊपर वाले से तो हम लोगों की प्रार्थना और दुआ है कि ऊपर वाला कहीं किसी को हादसा में ना डाले, कोई हादसा ना हो, लेकिन फिर भी खबरदार करना और खबरदार रहना ये दोनों इंसानों की जिम्मेदारी में आती है। इसलिए ये जिम्मेदारी को घर घर पैगाम बना करके पहुंचाना है कि बच्चों के हाथ में कभी कोई आतिशबाजी इस तरह की ना दें जिससे उनके जिस्म को कहीं नुकसान पहुंचे, आपकी खुशी को कहीं ठेस ना पहुंचे। इस तरह से आप लोगों को ये फिक्रमंदी के साथ ये एहसास रखना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है लोगों को मैसेज देने के लिए।